Nowadays, we are getting a lot of inquiries about HPV vaccine. So, I decided to discuss this topic in detail. First thing first, HPV virus. HPV मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. ये बहुत कॉमन वायरस है और इसकी मोर देन 200 टाइप्स है, जिसको नाम की जगह हमने नंबर्स दिए हैं, जैसे HPV 1, 2, 3. और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इफ़ यू विल वंडर कि more than 99% of cervical cancers are caused by only HPV number 16 and 18. And to your surprise, cervical cancer is second most common cancer in the female in India. 20 साल पहले cervical cancer was most common because हम लोगों ने pap smear और HPV testing करके we have reduced those numbers, and now breast cancer is the number 1 and second place has taken by the cervical cancer. सो ये टॉपिक और भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सब लोग जान जाए कि HPV वैक्सीन करता क्या है. HPV वैक्सीन प्रोटेक्शन कैसे देगा? ये वायरस कॉमनली एनवायरनमेंट में रहता है एंड इट गेट ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट. तो इससे कंट्रोल करने के लिए बॉडी में इम्यून सिस्टम को ये वैक्सीन स्ट्रॉन्ग करेगा. मतलब आपकी इम्यूनिटी की जो आर्मी है वो पहले से ही तैयार रहेगी अगर वायरस का अटैक होता है. तो जब भी वायरस का एक्सपोजर होगा तो देन यू विल नॉट हैव दोज सिम्टम्स जो नॉर्मली अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो होंगे. तो ये बस क्या सर्वाइकल कैंसर ही करेगा? जैसे मैंने बोला कि देयर आर 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस. तो वो सर्वाइकल कैंसर के अलावा दे कैन कॉज ईसोफेजियल कैंसर, मतलब जो अपना फूड पाइप है, थ्रोट कैंसर, एनल कैंसर, वल्वल कैंसर एंड इवन पिनाइल कैंसर इन द मेल. So that's why this vaccine is definitely not only for the female but it is also for the male. तो ये वैक्सीन लेना कब है? आइडियल एज क्या है? Ideally you can at the earliest you can give to your kids or girls who are 9 years of age, they can take it, even boys. And it is very important that you take this vaccine before you enter into your sexual life. So 9 to 15 is the ideal age to take this vaccine. And you can also take as per the guidelines up to the age of 45. Even till the age of 27 इसके maximum benefits आपको मिल जाएंगे. कितने डोसेस है? तो इसके अगर आप 15 years के पहले लोगे तो उसके 2 डोसेस होते हैं. एक जो फर्स्ट डोज होगा उसको 0 डोज एंड जो सेकेंड डोज होगा वो 6 month के बाद. एंड इफ somebody's age is more than 50 to 45 तो उसमें 3 डोसेस आते हैं. फर्स्ट डोज विल बी कंसिडर्ड एज 0 डोज, देन 1 to 2 months में एक, और देन लास्ट 6 month. सो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर. ये वैक्सीन इंट्रामस्कुलर है, जैसे कि आप आर्म्स में और अपर थाइज में आपके सिस्टर को पता होता है वो दे देंगे. So it is easily available in most of the clinics and multi-speciality hospitals. Even some government hospitals are providing with the lesser cost. So you can check this on the website. There are 3 different types of vaccines available currently. Cervarix, which is effective against HPV 16 and 18, and Gardasil 4 and 9. तो ये 4 वायरस के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन देगा एंड Gardasil 9 अगेंस्ट 9 वायरसेस. तो कौन सा वैक्सीन आपके लिए अच्छा रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट ऑफ द फीमेल एंड मेल कैन टेक 16 and 18, but other viruses can cause genital warts also. So genital warts they are hard skin tags, they are very ugly looking and they are contagious also. So Gardasil 9 covers most of these high risk viruses. So low risk viruses, they can come and go and you even don't know when you got infected with them. So they are not very harmful. So you have to concentrate mainly on high risk viruses. तो हर एरिया में different types of vaccines are available. You can talk to your doctor before taking any vaccine and which is suitable for you. I would suggest if Gardasil 9 is available, you can go for Gardasil 9. So when I am telling you this vaccine is so important, the first question might come to your mind, how safe it is, and that is a valid question. So पहले ये समझ लेते कि ये वैक्सीन WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है एंड मिलियंस ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी टेकन दिस वैक्सीन और कितने सारे कंट्रीज में गवर्नमेंट अप्रूव हुआ है. तो ये वैक्सीन हैज़ गॉन थ्रू लॉट ऑफ स्टडीज एंड इससे पाया गया है कि ये वैक्सीन के बेनिफिट्स आर मोर देन द रिस्क.
साइड इफेक्ट्स लाइक माइनर साइड इफेक्ट, जहाँ पे आप कोई भी इंजेक्शन लेते हो तो इंजेक्शन के साइड पे पेन होना, थोड़ा ब्लीडिंग होना, रेडनेस होना, ये कॉमन चीज़ें हैं. और लाइक एनी अदर वैक्सीन यू कैन हैव हेडेक, माइल्ड फीवर एंड बॉडी एक. So these are mild symptoms which can be with any other vaccine. There are few cases जिसमें severe allergic reactions देखे गए हैं. वो not because of vaccine, तो वैक्सीन प्रिपेयर करने के लिए जो कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं उसको पाए गए हैं. So अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो they are more than the risk, and जो भी रिस्क पाए, साइड इफेक्ट या रिस्क देखे हैं वो very in small quantity and they're very rare. So you can safely take this vaccine. Whom should not take this vaccine is very important. Those who are planning for pregnancy, those who are already pregnant, और जिनको latex, yeast या egg yolk से severe allergy है, ऐसे लोगों के लिए this vaccine can cause serious problem. So should not be taken. So to conclude, I would say कि prevention is always better than cure. मतलब पैप टेस्ट एंड HPV टेस्ट से हमें कैंसर एट द अर्लीस्ट डायग्नोज करने के लिए हेल्प होगी, एंड उसकी वजह से ट्रीटमेंट थोड़ी सिंपलर होके रिस्क ऑफ डेथ बहुत कम हो जाते हैं. बट व्हाट इफ आई टेल यू कि समथिंग यू विद दिस वैक्सीन यू कैन प्रिवेंट इट, मतलब ये आप होने से ही बच सकते हैं. तो इसीलिए ये वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है. इसके रिगार्डिंग आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो यू कैन कमेंट अस, विल गेट बैक टू यू.